السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اب ہمارے بیچ قریب عید کا دن آنے والا ہے، خوشیوں کا دن آنے والا ہے۔ چلیے صحیح۔ دنیا کی دوسری قوموں اور مسلمانوں کے درمیان خوشی منانے کا بھی ایک طریقہ ہے اور غم منانے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ عید کے دن بہت ساری وہ چیزیں جو اور دنوں نہیں کی جاتی، اسلام نے عید کے دن اس کی چھوٹ دی ہے، اجازت دی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشی غلاموں کو مدینہ منورہ کے اندر کھیل کرتے ہوئے، کرتب دکھاتے ہوئے ان کو اجازت عطا فرمائی ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حبشی کرتب دکھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چپ رہو، آج عید کا دن ہے۔ کوئی دف بجا کر کے خوشیوں کے گیت گا رہا تھا، کسی نے شکایت کی یا رسول اللہ یہ بچے دف بجا رہے ہیں اور خوشیوں کے گیت گا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انہیں خوشیوں کا اظہار کرنے دو کیونکہ یہ ہماری عید ہے۔ یعنی عید کے دن اظہار خوشی کے کچھ طریقے بتائے گئے ہیں۔ دسترخوان کو وسیع کرنا، اسی طریقے سے ہمیں دیکھ کر کسی کو محسوس ہو کہ آج ہم بہت خوش ہیں، آج ہم بہت خوش ہیں۔ آپ دیکھیں مہینے بھر روزے رکھے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا۔ اگر عید کے دن روزہ رکھیں گے تو آپ کو ثواب ملنے کی بجائے گناہ ملے گا۔ اور دنوں بھوکا رہنا عبادت ہے، آج کھانا عبادت ہے۔ اور دنوں پیاسا رہنا عبادت ہے، آج پینا عبادت ہے۔ آپ توجہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دن چھوٹ عطا کی ہے، آج کے دن کو خوشیوں کا دن قرار دیا ہے، لیکن خوشی میں کوئی اپنی حد کو پار نہ کرے۔ اسلام نے ہر چیز اعتدال سے عطا کی ہے۔ ایک عید ہے ہماری، آج اس عید کے متعلق بہت مختصر، تاکہ ہمیں وقت پر نماز بھی شروع کرنا ہے، بہت مختصر عرض کروں کہ نبوی عید کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے عید منائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استطاعت کے مطابق قیمتی کپڑا پہنا جائے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کی استطاعت ہے، بہت اچھا کپڑا آپ پہن سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ جو ہے وہ یوں ہی پھٹے پرانے اور دھلے ہوئے کپڑے پہن کر آ جائیں۔ نہیں، اگر اللہ نے نوازا ہے تو آپ جو ہے وہ اچھے کپڑے پہنے، نئے کپڑے پہنے، نئے میسر نہ ہو تب دھلے ہوئے پہنے، لیکن کپڑے اچھے پہنے، اس لیے کہ عید کا دن ہے، آج عید کا دن ہے۔ اللہ اپنی دی ہوئی نعمت کو تمہارے وجود پر دیکھنا چاہتا ہے، لیکن معاذ اللہ اب عید مسلمانوں کی ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ دوسروں کے مذہبی تہواروں میں اور مسلمانوں کی عید میں اب کوئی بہت زیادہ فرق نظر نہیں آتا۔ ہم عید کے دن صرف ایک کام کرتے ہیں جو سنت ہے، جسے دگانا کہتے ہیں، نماز عید کہتے ہیں، اور جیسے ہی عیدگاہ کو ہم پار کرتے ہیں پھر ہم اپنی حدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اگر ہمارے سروں پر ٹوپی نہ ہو، ہمارے چہروں پہ داڑیاں نہ ہو، تو کوئی محسوس بھی نہ کرے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس قوم نے مہینے بھر تک کے روزے رکھے، جس قوم نے مہینے بھر تک کے تراویح پڑھی، جس قوم نے مہینے بھر تک کے رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوگات پیش کی، اگر پھر اسی قوم سے عید کے بعد سنیما گھر پر ہو جائیں تو پھر روزے کس چیز کا نام ہے؟ روزہ تو نام ہے لعلکم تتقون، روزے اس لیے تم پہ فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لباس بھی وجود پر اسلامی نہیں، سر بھی اب لوگ بناتے ہیں اور حجامت بھی کرواتے ہیں تو اسلامی طرز کے مطابق نہیں۔ پتہ نہیں ہمارے جوانوں کو کیا ہو گیا، اسلام کی دی ہوئی نعمتوں کو اب وہ اپنے لیے کافی نہیں سمجھ رہے، اللہ ماشاءاللہ ہر چیز۔ دوستو شروع سے لے کر آخر تک اگر سید امین القادری صاحب کا بیان سن چکے ہوں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ عید کے دن کیا کرنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے۔
हमसे बेहतर सैयद अब्दुल कादिर साहब को सुनेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन मैं आपके बीच बस छोटे से बात रखने के लिए आया हूँ। क्या ईद के दिन हमें खुशियाँ मनाने का जो इजहार और मौका जो मिलता है, क्या हमें सिर्फ खुशियाँ ही मनानी चाहिए, अपने या पड़ोसी का हुकूक का भी खास ख्याल रखना चाहिए? हमारे मुआशरे में देखा ये भी जाता है कि कुछ लोग हैं जो पड़ोसियों का हुकूक का खास ख्याल नहीं रख पाते हैं। बहुत सारे रीज़न हैं। क्या ईद के दिन खुशियाँ मनाया जा सकता है, लेकिन हमारे बीच जो रीज़न है क्या उस रीज़न को दूर नहीं करना चाहिए? बिल्कुल कर लेना चाहिए। अगर सैयद अब्दुल कादिर साहब का बयान को सुनेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि दोस्तों मुफ्ती सैयद अब्दुल कादिर साहब ने जो बयान फरमाया है बिल्कुल सही और दुरुस्त है। सैयद अब्दुल कादिर साहब का बयान बिल्कुल सही है, आपको उस पर अमल करना चाहिए। हमसे बेहतर सैयद अब्दुल कादिर साहब को सुने और एंड तक यही बात बोलूँगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि लोग देखें और सुने समझें। क्या नज़र बद लगना इतना बुरा है? जो ईद के दिन बाल कटवाते हैं, बाल कटवाना क्या सही है? छोटे लिबास पहनकर नुमाइश की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अय्याश वाली ज़िंदगी जीना, तो क्या मुसलमानों और यहूदियों में यही फ़र्क है? दोस्तों, हम मुसलमान हैं और हमारा दीन इस्लाम है और इस्लाम हमें बहुत कुछ हद तक सिखाता है कि एक दूसरे से एक सान कैसे पेश आना चाहिए, क्या कपड़ा पहनना चाहिए, सारी चीज़ें सीखने को मिलती रहती है। तो इस्लाम मुझे बहुत बड़ा मकाम दिया है, तो अपने मकाम का, अपने रुतबे को समझें। इसलिए कि अपना हुकूक अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर हर जगह नाकामयाब होते हुए नज़र आएंगे दोस्तों। इसलिए सैयद अब्दुल कादिर साहब का बयान सुनिए, शुरू से लेकर आखिर तक सुनिए, ताकि हर वीडियो में जो भी जानकारी दी जाती है सही और सारी जानकारी है, इस पे अमल करने की कोशिश करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चीज नहीं लाना चाहते हैं, सर का खत बनाने का अंदाज भी, जिसे आप हजामत कहते हैं या कटिंग कहते हैं, वो भी माज़अल्लाह गैरों की तरह, और फिर सिर्फ गैरों की तरह नहीं बल्कि ऐसे अंदाज से उसको इख्तियार करते हैं कि जिसकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले मुज़म्मत फरमाई थी। ईद के लिए खुसूसी कटिंग करवाई जा रही है। वो कटिंग कैसी है? कुछ बाल बहुत बड़े हैं, कुछ बाल बहुत छोटे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आज से 1450 साल पहले कि कुछ लोग अपने सर के बाल बुख्ती ऊंटों की तरह रखेंगे, अल्लाह ने उन पे जन्नत की खुशबू को भी हराम कर दिया है। आज के नौजवान लड़के खुसूसी तौर पर इस तरीके की हजामत का एहतमाम कर रहे हैं। उनको देखो, बदन पर बाज़ाब्ता तौर पर जो है बेल बूटे बनवाए जा रहे हैं। कब? मुसलमानों की ईद है, और चूंकि अब बदन पर बेल बूटे होंगे तो उसको बताने के लिए जिस्म को नंगा रखना यानी छोटे कपड़े पहनना बहुत जरूरी होगा, तभी तो बेल बूटे नजर आएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखना, ये मगरबी तहजीब, ये मगरबी कल्चर, ये गुनाहों का माहौल तुम्हारे लिए नुकसानदाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे कपड़े पहनने को सुन्नत करार दिया है। इसका फायदा क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माओ से ज्यादा मेहरबान, बाप से ज्यादा मेहरबान। अरे करोड़ों माएं बफर्ज मुहाल अगर किसी एक बच्चे की हो तो करोड़ों माएं मिल करके अपने बच्चे से जितना प्यार नहीं कर सकती, उससे ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी उम्मत से प्यार किया है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका हमें बताया है उसमें हमारा फायदा है। आप अंदाजा करें, अगर आप शॉर्ट कपड़े पहनते हैं जिससे बाजू भी नजर आते हैं, जिससे जो है वो आपके जिस्म के आज़ा नजर आते हैं, उसका नुकसान क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत में कसरत के साथ अगर मौत होगी तो वो नजर की वजह से होगी। आका फरमाते नजर बद हक है, यानी किसी को नजर लग जाना हक है। जादू उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना बद नजर नुकसान पहुंचाती है। फरमाया गया कि जो नजर बद है वो जानवर को लगे तो जानवर हांडी में चला जाता है, पत्थर को लगे तो पत्थर टूट जाता है, और इंसान को लगे तो इंसान कब्र में चला जाता है। अब ये जो तुम शॉर्ट कपड़े पहनकर जिस्म पे बेल बूटे बना रहे हो, यानी लोगों की नजर तुम पर पड़े। लिबास तो इसलिए था कि लोगों की नजर तुम्हारे वजूद पर मुकम्मल न पड़े, लिबास उसको रोक ले, लिबास तुम्हारे वजूद की हिफाजत करे। लेकिन अब तुमने चूंकि अपने पूरे वजूद को नंगा कर दिया शॉर्ट
बहुत से शॉर्ट कपड़े पहन रहे हो तो लोगों की नजरें तुम पर जमेगी और नजर बद लगेगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरी उम्मत में कसरत से मौत नजर बद की वजह से होगी। नुकसान किसका हुआ? आप अपनी जान से जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आप नहीं देखते, अरे अभी तो बैठा था अभी मर गया। किस वजह से? नजर बद की वजह से। आपने नजर बद को क्या समझा? जादू करने वाला जब किसी पे जादू करता है तो उसकी सलाह। दोस्तों अगर शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देख चुके होंगे ना तो सारी चीज़ें साफ आपको सब सामने साफ समझ में आ होगा। क्या ईद के दिन हमें छोटे कपड़े, छोटे लिबास या जो स्टाइलिश बाल होते हैं, हेयर कट होते हैं जो हम लोग करा के जाते हैं, क्या ये सही है? क्या स्टाइलिश बाल या फटे जीन्स जो अभी वायरल ट्रेंडिंग पे है, एक ऐसा क्या सही है? ऐसा नहीं। रमज़ान मुझे तकवा सिखाता है और तकवे में कभी ऐसा नहीं है कि स्टाइलिश हेयर होना चाहिए या फिर फटा जीन्स का आप बेहयाइयों की तरह, गैर कौमों की तरह पहने। इस्लाम का ये लिबास नहीं है। आइए अब नजर बद लगने का कुछ रीज़न भी हैं जो सैयद अमीनुल क़ादरी साहब के बयान में आप सुन चुके होंगे। लेकिन नजर बद कहाँ तक हमारे काम में आते हैं? काम में नहीं, बिल्कुल हमारे काम को बिगाड़ देते हैं। नजर बद को बताया जाता है कि कब्र तक ले जाए जाते हैं। नजर बद जिसको हो जाए उसको कब्र तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों तो नजर बद इतने बुरी चीज़ है, तो नजर बद लगने के रीज़न्स बहुत सारे हैं जो आपके बीच सैयद अमीनुल क़ादरी साहब रख रहे थे। उस पर अमल करने की कोशिश करें। फ़िलहाल मैं आपसे एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ। अगर आप हमारी वीडियो को पहली मरतबा हैं यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी न किसी नेक्स्ट वीडियो में। हर चीज़ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।